پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، حملے میں ملوث تمام دہشت گرد ہلاک، کلیئرنس آپریشن جاری، دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ سیکورٹی اداروں کی بروقت کارروائی سے اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا، سیکورٹی فورسز نے مختصر ترین وقت میں حالات پر قابو پا لیا، دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں مکمل طور پر ناکام، اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری، مالی سال 2020-21 بجٹ کی منظوری کا عمل جاری، بجٹ پر غور کرنے کے لیے تحریک صنعت و پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے ایوان میں پیش کر دی۔ عوام کی ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، کوئی طاقت ہمیں اس وقت تک شکست نہیں دے سکتی جب تک ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اصلاحات کا عمل ایک صبر آزما کام ہے اور اس عمل میں سٹیٹس کو کی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے عشائیے سے خطاب۔ گردوارہ دربار صاحب کو کرتارپور گردوارے کو آج سے سکھ یاتریوں کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مقیم سکھ کمیونٹی کا خوشی کا اظہار، پاکستان نے ایک مرتبہ پھر پہل کرتے ہوئے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کو سکھ یاتریوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ مودی حکومت بھی بھارتی سکھوں کے لیے کرتارپور بارڈر کو کھول دے، پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے چیئرمین سردار ستونت سنگھ کا مطالبہ۔ احساس ایمرجنسی کیش کی کامیابی، احساس ایمرجنسی کیش کا 1 کروڑ 20 لاکھ صارفین کا ہدف مکمل۔ پورے ملک میں احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ 3 ہزار سے زائد محنت کش افراد میں 145 ارب 29 کروڑ روپے سے زائد امدادی رقم تقسیم کی گئی۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی حکومت کی اولین ترجیح۔ کورونا وبا کے باعث پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے چارٹر پروازوں کا سلسلہ شروع۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز نیو یارک سے 101 مسافروں کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں 3,557 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرین کی تعداد 2,06,512 ہو گئی، 49 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 4,167 اموات، 95,407 صحت یاب۔ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر فوٹو سیشن کرنے والوں نے اپنے دور میں شعبہ صحت پر توجہ نہیں دی، سستی شہرت کے شوقین شعباتیوں میں مصروف رہے، عوامی معیاری علاج کے لیے ترستے رہے۔ سابقہ حکومت نے شعبہ صحت کے لیے عملی اقدامات کیے ہوتے تو انہیں علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑتا۔ ایسا ہیلتھ سسٹم لایا جا رہا ہے جہاں عام آدمی کو بھی معیاری علاج معالجے کی سہولت میسر ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,02,42,000 से बढ़ गई। 5,04,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। 55,53,000 से ज्यादा सेहतियाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,28,000 से तजावुज कर गई। पड़ोसी मुल्क ईरान में अचानक कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा। मुल्क में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। मास्क पहनने से वायरस फैलने के खदशे को 85% कम किया जा सकता है। लोग मास्क पहने और वबा को संजीदा लें। ईरान के नायब वजीर सेहत की अवाम से अपील। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला इस्लामाबाद में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को इलाका रोनीपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, इलाके के तमाम खारिजी और दाखिली रास्ते सील। बलूचिस्तान के जिला कलात में टिड्डी दल की यलगार ने तबाही मचा दी। करोड़ों की तादाद में टिड्डियों के कलात के मज़ाफ़ाती इलाकों में सेब, आड़ू, खुबानी, गंदम, आलू, प्याज, खरबूजा, तरबूज और दीगर फसलों पर हमले। जिम्मेदारों ने टिड्डियों के खात्मे के लिए स्प्रे का आगाज कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनचेस्टर से वॉस्टरशायर पहुंच गई। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। कौमी स्क्वाड को 14 रोजा करंटीना के दौरान प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। टीम 13 जुलाई को डर्बीशायर रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगस्त-सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं समीना राना और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब होने वाले दहशतगर्द हमले को सिक्योरिटी इदारों की जानिब से नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हमले में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है। तफसीलात के मुताबिक हमले के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। ईदी जराये के मुताबिक 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के नुमाइंदे जमीर अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमीर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया है, जबकि पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। बताइएगा, मजमूई तौर पर अगर बात की जाए इमारत की, तो इमारत को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त न सिर्फ इमारत को क्लियर करार दिया गया है, बल्कि अंदर ट्रेडिंग भी जो है वो दोबारा शुरू की जा चुकी है। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इसके आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे गेट है। ये वो गेट है जहाँ से हमलावर जो है वो एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। ये मेन गेट है जो कि अक्सर बेशतर बंद रहता है। इस गेट के लिए सिर्फ तभी खोला जाता है जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई बड़ी शख्सियत यहाँ पे आती हैं। ये गेट हमेशा बंद रहता है और जो ट्रेडर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए जो रास्ता है वो एक अलग रास्ता जो कि दूसरी तरफ से आता है। तो यहाँ के ये फायदा उठाते हुए इन्होंने, क्योंकि ये गेट बंद होता है, इससे इतनी ज्यादा पुलिस या नफरी नहीं होती, इन्होंने पहले यहाँ से घुसने की कोशिश की। ये चारों हमलावर एक गाड़ी में आए थे। उतरते ही इन्होंने कोई धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया, गेट यहाँ पे तोड़ा है और अंदर जाने की कोशिश की है। पुलिस की जो मौजूदा नफरी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है और उस फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर मौके पर ही जाँ बाक हो गए थे और बाकी जो 2 हमलावर है वो अंदर जाने में कामयाब हो गए थे।
आया चुंदरी का रोड बहुत अहम शारा है, यहाँ पे तमाम कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी के एजेंसी जो हमारे पुलिस है उनका भी जो मेन ऑफिस है वो यहीं पे है। इसके अलावा रेंजर्स की जो हेडक्वार्टर्स है वो भी इसके बिल्कुल करीब ही है। तो यहाँ से बर वक्त जो इतला के बाद बर वक्त यहाँ से पुलिस और रेंजर्स के कंटिजेंट जो है यहाँ से निकले और उन्होंने इस इलाके को पूरा घेरे में ले लिया। फायरिंग का तबादला काफी देर तक जारी रहा और लेकिन 1 घंटे के अंदर ही रेंजर्स और पुलिस ने जो है बेहतर हम आहंगी और कोऑर्डिनेशन के साथ एक मजबूत हिकमत अमली के तहत तमाम जो हमलावर थे उनको मार दिया। जो 2 हमलावर अंदर चले गए थे उनको भी जो है मार दिया और उसके बाद जो बिल्डिंग की क्लियरेंस का अमल शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद ही बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया गया और इस वक्त अब ट्रेडिंग का अमल जो है वो जारी है। इस पूरे फायरिंग के वाक़े में 3 और अफराद भी जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो जांबाग हुए हैं, जिसमें से एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर है और 2 सिक्योरिटी एहलकार हैं। तकरीबन 4 ये हमलावर जांबाग हुए हैं और 3 ये अफराद। इसके अलावा जो है तकरीबन 7 के करीब अफराद भी जो है जख्मी हुए हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है समीर अब्बास, जिस तरह से आप भी बता रहे थे और हमने भी अपने नाज़रीन को बताया कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो दफ्तर है वो आई चुंदरीकर रोड पर है, उसके करीब और कुर्ब जवार में बहुत सारे अहम ऑफिसेज भी दफातर मौजूद हैं। इलाका जो है वहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। रेंजर्स की जानिब से सारे इलाके को सील कर दिया गया था। इलाके को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा? जी देखिए, इलाके को ऑलमोस्ट आसपास जो है अभी भी सिक्योरिटी के काफ़ी कंटिजेंट मौजूद हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है खास करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे ही हमला हुआ था उसकी बिल्डिंग को भी बंद कर दिया गया था आमदोरफ्त के लिए, और आसपास जो भी बिजनेस सेंटर्स थे उनको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है क्योंकि जब क्लियरेंस हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम जो ऑफिस हैं उनको खोलने के अहकाम आ गए हैं और यहाँ जो बिजनेस सरगर्मियाँ थी वो जो है वो रिज्यूम कर दी गई हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एरिया की सर्विलेंस के लिए फिजाई निगरानी भी की गई है ताकि देखा सके कि कहीं आसपास के इलाके में कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं दहशतगर्दों का जो कि इसका फायदा उठाते हुए कोई कार्रवाई करे ताकि उनसे भी बर वक्त निपटा जा सके। थोड़ी देर पहले जो है पाक फौज के दस्ते भी अंदर गए थे जिन्होंने बिल्डिंग को क्लियर करार दिया है और उसके बाद जो है वो ट्रेडिंग का आगाज भी अंदर से हो चुका है। सबसे जो बेहतर जो आप कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज ये है कि जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन नजर आई है रेंजर्स की और पुलिस की और कानून ऑफिस करने वाले इदारों की, वो काबिल तारीफ है क्योंकि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मेन ऑफिस है और जो हफ्ता का जो आगाज है, जो पहला दिन है, यहाँ पे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लोग आते हैं, स्टॉक्स खरीदते भी हैं और सेल आउट भी करते हैं। तो यहाँ पे मजमूई तौर पे जो बाकी दिनों से आज के दिन ज्यादा रश होता है। तो इस वजह से आज अगर बेहतर कारकर्दगी ना होती, बेहतर हम आहंगी ना होती और ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होता तो ज्यादा कीमती जाने ज़ाया होने का खदशा था। आप अगर देखें जो इवन आलमी सतह पर ऐसे हमले होते हैं उसमें पुलिस और जो दूसरे कानून ऑफिस करने वाले इदारे हैं उनको काफी वक्त दरकार होता है क्लियरेंस के लिए, लेकिन ये ऑपरेशन अपने आप में एक मिसाल है कि बर वक्त जो है इतने गुंजान इलाके में ऑपरेशन करना और बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में ऑपरेशन करके कम से कम कीमती जानों का नुकसान हुआ है और 4 दहशतगर्दों को मारा भी है। उनके पास वेपन्स भी ऑटोमेटिक थे, AK-47 तमाम के पास पाए गए थे। ये जो गाड़ी है ये इस्तेमाल की गई थी इस हमले में इस गेट पे आके। इसके अलावा यहाँ पे इससे शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ से लिए गए और अब जो है वो देखा जाएगा कि आखिर ये दहशतगर्द जो है किस तरह आए थे और इसके पीछे कौन मुलविस है। जी समीर, सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है जैसा इससे पहले भी आप बता रहे थे। बताइएगा कि हमले की वजह से ट्रेडिंग का अमल 1 मिनट के लिए भी मुतासिर नहीं हुआ। हमारे नाज़रीन को एक बार फिर से वाज़ेह कीजिएगा कि ट्रेडिंग मुसलसल अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग का अमल इस तरीके से ये रिज्यूम रहा क्योंकि मोस्टली जो लोग थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। ट्रेडिंग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, तो ट्रेडिंग चलती रही ताकि अगर जो आसपास मौजूद ना भी हैं तो वो जहां बैठे हैं वो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और वहां पे स्टॉक जो है वो सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे उनकी हिफाजत के लिए यहाँ से उस वक्त ऑपरेशन के वक्त लोगों को निकाला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा कीमती जानों को बचाया जा सके। हम एक दफा फिर आपको बताते चले कि ये जो ऑपरेशन था अपने हिसाब से एक मुनफरद ऑपरेशन था जो कि पुलिस और रेंजर्स ने कंडक्ट किया और बहुत थोड़े से टाइम में तमाम दहशतगर्दों को हलाक करके लोगों को बचा लेना और बड़े नुकसान से बचा लेना एक बहुत काबिल तारीफ अमल है। और इसकी पजीराई न सिर्फ यहाँ पे जो लोग जो PSX के अपने लोग हैं वो कर रहे हैं बल्कि यहाँ के तमाम लोग जो हम यहाँ जिनसे मिले उन्होंने भी इस बात की तारीफ की कि बहुत मुनज़्ज़म ऑपरेशन था, कम से कम लोग यहाँ पे जो है वो जान से गए, लेकिन एक बहुत मुनफरिद ऑपरेशन और एक बहुत मुनज़्ज़म ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ इस तरीके से अंदर गए कि तमाम जो हमलावर जो अंदर जाके बड़ा नुकसान देना चाहते थे और उनका मकसद यही था वो इस मकसद में नाकाम रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आपने हमें तफसीलन आगाह किया है। आपसे मजीद भी जानेंगे। मुल्क दुश्मनों का हमला नाकाम बना दिया गया है, दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद
में कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आज सुबह 10 बजे के करीब दहशतगर्दों की जानिब से हमला करने की कोशिश की गई, जिसको सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल बरवक्त ही कार्रवाई की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, और साथ साथ आपको आगाह करें कि पाक रेंजर्स और पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और इस मजमूम कार्रवाई को बिलाखिर नाकाम बना दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि इन हमलावरों ने पहले इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और जो मरकजी गेट था, बाहर का गेट था, वहां पर ही इन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। और उसके बाद कामयाबी की बात ये भी है सिक्योरिटी फोर्सेस को, यकीनन हम उस कार्रवाई को सराहते हैं और खिराज तहसीन भी पेश करते हैं कि इन दहशतगर्दों को इमारत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, ये इमारत के अहाते में ही अपने अंजाम को पहुंच गए। सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में स्पीकर असद कैसर की सदारत में जारी है और ऐवान में माली साल 2020-21 बजट की मंजूरी का अमल जारी है। बजट पर गौर करने की तहरीक सन्नत व पैदावार के वजीर हमाद असद ने ऐवान में पेश की। इजलास की कार्रवाई की तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी से। मियां मोहम्मद समी, बताइएगा आज के इजलास के हवाले से। जी, आज का इजलास जो है ये सिर्फ एक इसका एजेंडा है और वो है माली साल 2020-21 के बजट की मंजूरी। तो एजेंडे पे दो ही आइटम है, एक है तहरीक पेश करना कि जी बजट को गौर में लाया जाए और दूसरा है बजट मंजूर किया जाए। अभी ये तहरीक पेश कर दी गई है हमाद अजहर की तरफ से। उसके बाद अब अपोजिशन अरकान की तरफ से पहले ख्वाजा आसिफ ने इज़हार ख्याल किया बजट के हवाले से और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वहां से खिताब कर रहे हैं। इस दौरान कुछ जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे गुलाम सरवर खान ने भी अपनी बात की। तो जब ये गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, तमाम पार्लिमानी लीडर बोल लेंगे, तो उसके बाद फिर हमाद अजहर जो है वो तहरीक पेश करेंगे कि माली साल 2020-21 के बजट को मंजूर किया जाए। उसके बाद वोटिंग का अमल होगा और वोटिंग के बाद कसरत राय से जो है या जो भी वोट पड़ेंगे उस हिसाब से ये बजट मंजूर कर लिया जाएगा। इजलास जारी है, स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत कर रहे हैं और ये है कि अरकान जो है मुख्तलिफ पार्टियों के वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं बजट के ऊपर। और खास तौर पे उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए ये जो हालिया पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसको शदीद हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि बजट अभी पास नहीं हुआ और ये जो है अवाम के ऊपर एक बोझ डाला गया है, जबकि बजट तकरीर में ये कहा गया था कि ये पेट्रोल की कीमतें जो है इनसे अवाम को कम किया गया है ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। मियां मोहम्मद समी आप बता रहे हैं कि बजट बहस में हिस्सा लिया जा रहा है और मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन बेंचेस की जानिब से अभी तक इस बहस में क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी, अपोजिशन ने बेसिकली जो बुनियादी तौर पे जो बजट है उसको तनकीद का ही निशाना बनाया है और खास तौर पे ये जो बजट की मंजूरी से 2-3 दिन पहले पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया है उस पर शदीद तनकीद की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी उस हवाले से बात की और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी हवाले से। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद समी, आप हमें कौमी असम्बली इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करप्शन के खात्मे का मैंडेट दिया है और ये एक सब्र आजमा काम है। वो इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया में कहीं भी इस्लाहात का अमल आसान नहीं होता। याद रखें कि जब आप रिफॉर्म करते हैं, दुनिया की तारीख उठा के देखेंगे कभी भी रिफॉर्म आसान हो। रिफॉर्म का मतलब ही यह है कि आपने स्टेटस को के खिलाफ लड़ना है। तो जब स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ेंगे, जो कि करप्ट निजाम से पैसे बना रहा है, वो आराम से तो नहीं आपको मौका देगा कि आप आके चेंज कर दें। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी जब तक हम अपने नजरिए के ऊपर खड़े हों। हम हारेंगे तब जब हम अपने नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। उन्होंने कहा कि करप्ट अनासिर पर केसेस खत्म करा दूं तो ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हम अपने नजरिए पर खड़े हैं कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। आज ये जो सारी आपकी ऑपोजिशन है, मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में। बड़े आराम से हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब खत्म होंगे जब हम अपने नजरिए से पीछे हटेंगे। देखें, नजरिया जब तक
नजरिए के ऊपर आपकी एक पूरा वोट बैंक सारे पाकिस्तान में आज खड़ा है आपके साथ। वो आपसे कोई उम्मीदें लगा के आया, वो ये नहीं समझता कि आप पहले दिन कामयाब हो जाएंगे या 1 महीने या 1 साल के बाद, लेकिन वो तब तक मायूस भी होंगे। ऊंच नीच आती है, स्ट्रगल है ना, आपकी तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती, ऊंच नीच होती है। कोई भी दुनिया में आप, कोई भी दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल प्लीज याद रखें कभी भी एक ही लाइन में नहीं चलती। और इशाइये से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ हलीफ जमातों के अरकान से मुलाकातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में जुबैदा जलाल, एहसानुल्लाह रैकी, खालिद हुसैन मक्सी, इसरार तरीन और रुबीना इरफान शामिल थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर तालीम शफकत महमूद, डिप्टी स्पीकर मोहम्मद कासिम सूरी और चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सूरत हाल, इत्तेहादी मामलात और बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MKM पाकिस्तान के वफ़द ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वफ़द ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, IT के विफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक और अरकान कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली, किश्वर ज़हरा, साबिर हुसैन कायम खानी, सलाहुद्दीन और उसामा कादरी शामिल थे। मुलाकात में कराची समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत को टैक्स फ्री बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ़द ने, जिसमें बैनुल सूबाई राब्ते की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो शामिल थी, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। अरकान कौमी असम्बली नवाबजादा शाहजैन बुगटी, मोहम्मद असलम भूटानी और गुलाम बीबी भरवाना ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अलग अलग मुलाकात की। ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में लूट खसूट से अपनी जायदादें बनाई। अब गैर मुल्क में जायदादें बनाने वाले मुल्क में आकर गरीबों का रोना रो रहे हैं। ऑपोजिशन को आवाम से कोई सरोकार नहीं। मुश्किलात के इस दौर में इलेक्शन की बातें करना ऑपोजिशन को जेब नहीं देता। विफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज, मुराद सईद और हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क के निजात दहिंदा हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है और तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुत्तहिद है और बजट भी पास कराएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए बेताब हो रही है। अवाम की जो हालत जार है उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन दो पार्टीज की है। इनमें सबसे बड़ा हाथ उनका था इस मुल्क को इस हालत में लाने का। आज वही इस बात पे लोगों को उकसा रहे हैं। हम इमरान खान की क़यादत में जितनी भी पार्टी है वो बिल्कुल स्टैंड के साथ, उनके साथ मुकम्मल यकजहती, उनके साथ पूरी सपोर्ट, और हम यही समझते हैं कि इस मुल्क का अगर कोई निजात दहिंदा है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि माजी की हुकूमतों की तबाहाल मैशत को हमने ठीक किया। अपोजिशन ने रिवायत को बरकरार रखते हुए बजट पर तनकीद की। ये एक रवायत बन गई है इनकी पोलिटिकल पॉइंट्स को की, और मैं उम्मीद करता था कि इस मरतबा तो कम से कम मुल्क इस दबाव में है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि जिम्मेदारी का सबूत देंगे, लेकिन लगता है ऐसे है उनको सिर्फ अपने सरमाए की फिक्र है, इनको सिर्फ इनामत चाहिए। ऐसे हिस्मतें नहीं अपनाई गई, जिससे मीशत जो है उसके ऊपर जो नुकसान हैं उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश की गई और वबा को भी स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। अपने लोगों की गुर्बत को सामने रखते हुए, उनके वसाइल को सामने रखते हुए, अपने मुल्क के वसाइल को सामने रखते हुए। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं कि अपोजिशन आपस में नूरा कुश्ती खेलती है। माजी के हुक्मरानों की करप्शन सामने आने पर वो अवाम के सामना नहीं कर पा रहे। जो चोरों की मजलिस हुई है ये कोई नई बात नहीं है। हमने तो पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये असल में एक है, कभी लिबरल बन जाएंगे, कभी मौलाना के कंटेनर पे आपको नजर आएंगे। ये हर किस्म की इस किस्म के हरबे करेंगे सिर्फ एक चीज कि इमरान खान के खिलाफ। पाकिस्तान में पहली दफा
कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस बजट को भी आवाम अप्रिशिएट करती है, इसमें रिलीफ पैकेजेस जो दिए गए उसको भी अप्रिशिएट करती है। पाकिस्तान इंशाल्लाह इमरान खान की तरह में तरक्की करेगा। जाकिर गुजरा ने कहा कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला 3 माह पहले किया, दुनिया इसकी तकलीद आज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया बजट में सेहत और तालीम के फंड्स में इजाफा किया है और गरीब तबके के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को आज से सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोला जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी भारतीय सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर को खोल दे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पहल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को सिख यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया है। इंडिया की तमाम सिख संगत नूं एक सुनेहा देना चाहना कि 29 जून नूं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफों करतारपुर कॉरीडोर का जिहड़ा है खोलने का फैसला किया गया है और इस दौरान असी इंडियन गवर्नमेंट तो भी अपील करते हाँ कि 29 जून नूं इंडियन राही कॉरीडोर खोल दिता जाए ताकि जिन्हें भी इंडियन सिख यात्री ने वो दरबार साहब गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब जी के खुले दर्शन दीदारे कर सकन। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों और करतारपुर के जिन्हें भी डिपार्टमेंट ने तिन्हां वालों सोशल डिस्टेंस और SOPs का मुकम्मल इंतजाम किए गए ने और जिन्नी भी संगत आएगी तिन्हां नूं उत्थे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं दरपेश होगी। कोरोना के बायस अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क से आने वाली PIA की 7वीं परवाज PK 9722 के जरिए 101 मुसाफिर लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग और कोरोना टेस्ट किए गए। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का 1 करोड़ 20 लाख सार्फिन का हदफ मुकम्मल हो गया है। एहसास इमरजेंसी कैश की कामयाबी और सार्फिन की जरूरत को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सार्फिन का ये हदफ 1 करोड़ 61 लाख 63 हजार मुकर्रर किया है। पूरे मुल्क में अब तक एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए 1 करोड़ 20 लाख 3 हजार से जायद मेहनत कश अफराद में 145 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद की इमदादी रकूम तकसीम की जा चुकी हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में 1,98,000 से जायद अफराद में 2 अरब 42 करोड़ से जायद की इमदादी रकूम तकसीम की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद में 63,000 से जायद अफराद में 76 करोड़ रुपए से जायद की इमदादी रकूम तकसीम की गई हैं। बलोचिस्तान में 6,11,000 से जायद अफराद में 7 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद की इमदादी रकूम तकसीम की गई हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 86,000 से जायद अफराद में 1 अरब 5 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकूम तकसीम की जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में 21,08,000 से जायद अफराद में 25 अरब 59 करोड़ रुपए, पंजाब में 52,75,000 रुपए से जायद अफराद में 63 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद, जबकि सिंध में 36,59,000 से जायद अफराद में 44 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद इमदादी रकूम की तकसीम की जा चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मज़ीद 3,557 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 49 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,06,512 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,167 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद
74,778, सिंध में 80,446, बलूचिस्तान में 10,376, खैबर पख्तूनख्वा में 25,778, इस्लामाबाद में 12,643, गिलगित बल्तिस्तान में 1,442 और आज़ाद कश्मीर में 1,049 है। और अब तक मुल्क भर में 95,407 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7,288 बार सेहत के रहनुमा असूलों की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर 1,070 मार्केटों और दुकानों को सील किया गया है, जबकि 1,234 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना और मुतादिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। सबसे ज्यादा खिलाफवर्जियां खैबर पख्तूनख्वा में देखने में आई, जहां पर 178 मार्केटें और दुकानों को सील किया गया, जबकि हिफाजती इक़दाम न करने पर 105 गाड़ियों को जुर्माना किया गया है। पंजाब से 2,172, बलूचिस्तान में 786, सिंध में 489, आज़ाद कश्मीर में 390, गिलगित बल्तिस्तान में 183 और इस्लामाबाद में 16 शिकायत मौसूल हुई। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अपने एक बयान में गवर्नर ने कहा कि हुकूमत कोरोना से बचाव के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में आवाम को संजीदगी के साथ SOPs को अपनाकर हुकूमत का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। मास्क न पहनकर हम अपने साथ और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि दुनिया भर में लोगों ने खुद को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। उन्होंने मजीद कहा, कोरोना की वजह से मुल्क को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें कोरोना पर सियासत करने के बजाय SOPs पर अमल कराएं। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि प्रोपेगेंडा की सियासत अपोजिशन का वतीरा है और मनफी सियासत को परवान चढ़ाने वाली अपोजिशन की रही सही साख भी खत्म हो चुकी है। वज़ीर आला ने अपने एक बयान में कहा कि लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करने वालों ने अपने दौर में सेहत के शोबे पर तवज्जो नहीं दी और सस्ती शोहरत के शौकीन शोबाजियों में मसरूफ रहे, जबकि अवाम मयारी इलाज के लिए तरसते रहे। उन्होंने कहा कि अगर साबिका हुकूमत ने शोबा सेहत के लिए अमली इक़दाम किए होते तो उन्हें आज इलाज के लिए बाहर न जाना पड़ता। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुल्तान डिवीजन में भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। मकामी इंतजामिया ने हॉट स्पॉट 16 मकामात को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सोमवार से जुम्मा के दौरान SOPs के तहत तिजारती सरगर्मियां भी जारी हैं। मज़ीद तफसील फरहान मिर्जा से। कोरोना वायरस के बायस मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है, जबकि हर तरह की आमदरफ्त पर पाबंदी, मास्क पहनने की तरगीब के साथ साथ तमाम SOPs पर अमल दरामद की कोशिशें भी जारी हैं। न्यू मुल्तान, शाहरुख ने आलम कॉलोनी और MDA के लॉकडाउन एरियाज में अशिया ज़रूरिया की होम डिलीवरी के लिए निजी कंपनी की खिदमात भी हासिल की गई हैं, जो जरूरत की हर चीज घर की दहलीज पर पहुंचाएगी। ठीक किया गया है, क्योंकि अगर ये बंद ना किया जाए कि लोग ऐसे फिरते रहेंगे और तादाद बढ़ती जाएगी। खतरनाक बीमारी, हमें इसकी एहतियात करनी चाहिए, पर मजबूरी है इसलिए हम लेके जा रहे हैं। इधर केसेस ज्यादा हैं, इसलिए उन्होंने इधर लॉकडाउन किया हुआ है। बगैर मास्क के आगे किसी को नहीं जाने दे रहे और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश यही कर रहे कि गैदरिंग ना हो, अवाम जो है वो समाजी फासला रखे। दूसरी जानिब जिला मुल्तान में एहसास कफाला सेंटर से मुतासरीन को अमदाद की फरहमी जारी है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से अब तक लाखों मजदूर खानदान माली अमदाद वसूल कर चुके हैं। कोरोना के बायस निश्चर अस्पताल में अब तक 129 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 288 अफराद ने इस मोहलिक वायरस को शिकस्त दी है। मुल्तान में कोरोना केसेज के पेश नजर मजीद इलाके सील किए जाने के इम्कानात हैं। सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही इस मौजी मर्ज से बचा जा सकता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। वज़ीर आला सिंध मुराद सईद इस वक्त कौमी बराह रास्त इस वक्त आपको ले चलेंगे। कौमी असम्बली इजलास जारी है और विफाकी वजीर मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। स्टील मिल का नाम लेते हैं, PIA मुनाफे मेहता मुशर्रफ के दौर में जरदारी आ जाते हैं और स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है, PIA खसारे में चला जाता है। अब बात सुने, जब भी माइक लेते हैं स्पीकर साहब, ये बंदा इमरान खान को चैलेंज कर रहा था, इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकता, भाग गया फिर से।
قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں اور اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت یہ اجلاس اس وقت جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ اجلاس کی کارروائی اس وقت جاری ہے اور اس سے پہلے جیسا کہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ آج بجٹ پر بحث کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ راولپنڈی کے 8 علاقوں میں کل سے 10 دن کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے مطابق گلزار قائد، خیابان سر سید، ڈھوک علی اکبر، کوٹھا کلاں کے علاقوں میں کل سے لاک ڈاؤن ہوگا۔ مورگھا، تخت پڑی، ننکاری بازار اور باڑہ مارکیٹ میں بھی کل سے 10 دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور شام کی شہزادی کی شادی بہت اہمیت کی حامل ہے بندوق۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہزادی سے ہونے والی اولاد ہی تخت کی وارث ہوگی۔ تم یہ کام ختم کر کے یہودا کے ساتھ جا کر آرتھرل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دو۔ مجھے علم ہے کہ یہی دکھ مجھے حقیقی فتح کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اگر کوئی چچا پہ شک کرے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا تو مجھے بھی اپنا مخالف پائے گا۔ گردوگلو اور اس کی ہواری مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور گندوگلو کو سردار بنانا چاہتے ہیں۔ تمہیں اور کس پر شک ہے؟ گردوگلو۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پنجاب کے اندر 70 لاکھ خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج اور اسلام آباد کے اندر ہزاروں خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج عمران خان نے دیا۔ میں سامنا کر لوں گا، ہمارے لوگ سامنا کر لیں گے۔ عمران خان نے جب پاکستان سے باہر گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مسلمانوں کی دلاداری ہوتی تھی، مسلمانوں کی دلاداری ہوتی تھی جس چیز سے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا۔ میں سرخرو ہوں، میرے لوگ سرخرو ہیں۔ جہاں سے اسلام کے خلاف ایک منٹ ہولڈ کریں جی شاہ صاحب، آپ ایک دو لوگ اس کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ پھر بات کریں۔ اسپیکر صاحب میں جی جی شاہ صاحب جی مراد شاہ صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں بیٹھ جاؤں آپ بات کریں پلیز۔ جب میں بیٹھ جاؤں گا وہ خود بخود آ جائیں گے۔ پلیز آپ پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا، اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہ یہاں سے گئے امریکہ میں اور سی آئی اے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ دمشدہ اضلاع ہمارے خیبر پختونخوا انگو میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائے اور فکر نہ کریں، ہم سنبھال لیں گے۔ وکی لیکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا، یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دے، سنوبر مار دے، تیری مرضی، جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، تیرا اس کے ماننے والوں سے پارا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لشکر کے لشکر مار دے۔ الحمدللہ آج عمران خان جب آیا تو پختونوں کا، پاکستان کا، اسلام کا مقدمہ لڑا۔ آپ تو وہاں پہ امریکہ سے ڈور موڑ کے پرچہ لے کے آتے تھے، پرچہ وہاں سے بھی لے کے آتے تھے۔ جب یہاں پہ بات شروع کی اسپیکر صاحب، یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑھوں یا یہ والا پہلا پڑھوں۔ میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس بدلو یا رٹا لگانا چھوڑ دو، کیونکہ رٹا لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلے بجٹ کی تقریرات کی تھی۔ ہمارا نظر نے ایسا بجٹ دیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، لیکن ٹیکسوں کی بات کر رہا تھا۔ یہ ہوتے ہیں رٹے کے نقصانات اسپیکر صاحب۔ پھر میں ایک اور چیز، کل ایک بیان آیا ہے فاطمہ بھٹو کا، اور آج میں
इस असेंबली फ्लोर पे इसलिए करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सामना कैसे करेंगे। आप जरदारी के फर्जंद और भुट्टो के नाम पे सियासत करते हैं। कल फातिमा भुट्टो ने कहा कि मेरे वालिद के कातिल और जो उस वक्त खड़े थे उसके नाम पे ये ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं और उनको एजाज दे रहे हैं। आप जब बात करें ना तो आप एमएनए साहब बोले। जी, लाड़काना से मुंतखब मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली। यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नाम इसलिए मैं नहीं ले सकता कि इन्होंने खुद हमें कंफ्यूज कर दिया है। प्लीज स्पीकर साहब, जो नॉर्म है उसका ख्याल रखें। जी बिल्कुल। स्पीकर साहब, अगर वो यहाँ पे हमारे वजीर साहब जब यहाँ पे आए पोर्ट्स एंड शिपिंग के, अगर उनको इस अंदाज से मुखातिब करेंगे प्राइम मिनिस्टर मुल्क के पर्ची की बुनियाद पे ये सियासत में आते हैं और करोड़ों अवाम के दिलों में रहने वाला हमारा कायद इमरान खान, उसके हवाले से अगर बात करते हैं तो हम तो सच इनके सामने रखते हैं। स्पीकर साहब, फातिमा भुट्टो की मैं बात कर रहा था, उनकी एक किताब भी है और मैंने पढ़ी है। स्पीकर साहब, आज मैं बोले कि 11 तारीख मुझे नहीं पता था कि इस किस्म की तकरीर होगी, मैं समझा हमारा जवाब देगा। मैं वो किताब यहाँ पे पढ़ के सुना देता कि उस वक्त जब उसके वालिद साहब को शहीद किया जा रहा था, कौन से पुलिस एहलकार थे, किस तरह वो प्राइम मिनिस्टर हाउस फोन करती है, किस तरह उनकी फरियाद होती है, जरदारी का क्या किरदार होता है। और कल तो आपने ट्रेनिंग सेंटर के नाम दे दिए, आप किस तरह सिंध के लोगों को जवाब देंगे? ये सिंध के भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इंटीरियर सिंध के भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि अगर किसी के कातिलों के नाम पे ये सेंटर बनाएंगे और असल वारिस भुट्टो की फातिमा भुट्टो, अगर ये इनसे सवाल करते हैं तो स्पीकर साहब ऐवान इसके ऊपर बात करें। मैं 5 सवाल करता हूँ स्पीकर साहब, 5 सवाल करता हूँ। पहली चीज, हमसे कहा, मैंने कारकर्दगी बताई, सियात इंसाफ कार्ड बजट के अंदर रखा, नजर नहीं आया। गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम बजट के अंदर रखा, नजर नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया, नजर नहीं आया। ये गोरों से बड़े मुतासिर, कहते कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, कर दो, बंद कर दो सब कुछ। गुर्बत से कोई नहीं मरता, भूख से कोई नहीं मरता, सर में हर साल बच्चे मरते हैं, आपको वो नजर नहीं आते। लेकिन कल ब्लूमबर्ग और गर्पिन से भी कहा कि पाकिस्तान का स्मार्ट लॉकडाउन जो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ये पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। 5 आखिरी सवाल स्पीकर साहब मैं छोड़ के आता हूँ। स्पीकर साहब, हम जवाब दें, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। ये तो कहते कि ये कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले? अगर आप पर्ची पे भी आए हैं लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर आगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सिंध के 5.5 करोड़, मैं अपनी कराची के एमएनएस को जब देखता हूँ स्पीकर साहब, वफाक ने इनको तरक्याती कामों के पैसे दिए, बजाय इसके कि तरक्की में साथ देते, शर्म होती तो कराची के एमएनएस की तरक्याती कामों के ऊपर स्टे न लेते, स्टे ले लिया। स्पीकर साहब, हमने तो सेहत की सहूलियात दे दी। मैं क्या सवाल ना करूं कि सिंध के 5.5 करोड़ जो सेहत के ऊपर लगना था। साहब, अगर आप मुख्तसर करें तो मेहरबानी होगी, हमने बजट पास करने प्लीज। बिल्कुल सर, मैं साबिदार, मैं 5 सवाल इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये भी जवाब दे रहे। 5.5 करोड़ सिंध के सेहत का कहां पे गया? स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछता हूं स्पीकर साहब कि आप तरक्याती कामों की बात करते हैं, एनएससी की बात करते हैं, हमने बलूचिस्तान को, इंटीरियर सिंध को 10% हमने गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम में सिंध का कोटा बढ़ाया। स्पीकर साहब, खुश नहीं होना, तनकीद करनी है, गालियां देनी है। स्पीकर साहब, आपने कहा खत्म कर दे, मैं आखिरी जुमले आपके सामने रखना चाहूं। स्पीकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़ियादत में जिस तरह के दुनिया में हम सुरखरू हुए, पाकिस्तान को जिस हकारत की नजर से देखा जाता था, इनकी नाअहली की वजह से कि यहाँ पे वहां पे जाके उनके वहां पे मिन्नतें करते थे। इमरान खान आज खुददार लीडर है इस खुददार कौम का, तो अल्लाह ने हमें इज्जत दी। इंशाअल्लाह इमरान खान। विफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। और अब बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस के असरात की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,02,32,000 से ज्यादा हो गई है और 5,04,000 से ज्यादा अफराद इस मोहलिक वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 55,46,000 से ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे। पड़ोसी मुल्क ईरान में अचानक कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफे के साथ ही मुल्क में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है।
ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि इस हफ्ते से मुल्क के कुछ इलाकों में फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। उन्होंने इन सूबों में दोबारा पाबंदियां लगाने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, जहां पर हालिया दिनों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। ईरान के नायब वजीर सेहत ने कहा है कि मास्क पहनने से वायरस फैलने के 85% खदशात कम हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम से ये भी अपील करते हैं कि वो मास्क पहने और वबा को संजीदगी से लें। आगे बढ़ते हुए पाक फौज की बात करेंगे। नाज़रीन, पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के तत्ता पानी सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की हुदूद में 850 मीटर तक आ चुका था। DGISPR के मुताबिक रवां साल ये भारत का नामा क्वाडकॉप्टर है जो पाक फौज ने मार गिराया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला इस्लामाबाद में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज ने नौजवानों को जिला के इलाके रोनीपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने दावा किया कि शहीद होने वाले नौजवान अक्सरियत पसंद थे जो फौज के साथ झड़प में मारे गए। तहम उन्होंने बताया कि शहीद होने वाले नौजवानों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। आखिरी इतलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। काबिज हुक्काम ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने गैर रियासती अफराद को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल देने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इसराइल की तर्ज के मजालिम ढा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर की डेमोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम उठाए। भारत के खिलाफ आलमी मुआशी सफारती पाबंदियां लगाई जाएं। विफाकी वजीर ने भारतीय इक़दामात को आलमी अमन के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि अब तो पूरी दुनिया का मीडिया भारतीय इंतहा पसंदी को इंतहाई खतरनाक करार देने लगा है। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। अब PTV होम की नाज़रीन 1 जुलाई से अपना पसंदीदा ड्रामा अतरुल गाज़ी हफ्ते में 5 दिन देख सकेंगे। MD PTV आमिर मंजूर के मुताबिक ये फैसला नाजरीन में ड्रामे की बेपनाह मकबूलियत के बाइस किया गया है। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया तो बहुत। आगे बढ़ते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान की बात करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में सूबे में लेबॉर्ट्री आलात की फराहमी और रिहैब सेंटर और अफरादी कुव्वत की बेहतरी के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में एयर एम्बुलेंस को इस्तेमाल में लाने के लिए लाइसेंसेस और दीगर अमला भी मौजूद है। इस सहूलत के आने से हुकूमत और अवाम दोनों को फायदा पहुंचेगा। विफाकी दल हुकूमत की बात करेंगे। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया की बेहतर हिकमत अमली और स्मार्ट लॉकडाउन के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। टेस्टिंग और करंतना की सलाहियत में इजाफे से भी नए केसेस की तादाद को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों और शहरियों को जुर्माने किए जा रहे हैं और उनकी गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में टिड्डी दल की यलगार ने तबाही मचा दी है। करोड़ों की तादाद में टिड्डियों ने कल्लात के मुजाफाती इलाकों स्किलकोक, अरेज यूसफी, हरबोई, कशान, दश्त, बडो और दीगर इलाकों में सेब, आड़ू, खुबानी, गंदम, आलू, प्याज, खरबूजा, तरबूजा और दीगर फसलों पर हमले तेज कर दिए हैं। 29 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड ट्रॉपिक्स डे मनाया जाता है और 1914 में अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रॉपिकल इलाकों के बारे में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के बाद ये दिन मनाने का आगाज हुआ है। ट्रॉपिक्स के हवाले से मनाया जाने वाला आलमी दिन इस अहद की तजदीद है कि न सिर्फ इन इलाकों की गैर मामूली वसत हयात को उजागर किया जाए बल्कि इन इलाकों को दरपेश चैलेंजेस से भी निपटा जाए।
کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. سب سے پہلے بات کرتے ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم وسٹرشائر پہنچ گئی ہے. 20 کھلاڑیوں اور 11 سپورٹنگ سٹاف پر مشتمل قومی اسکواڈ بذریعہ بس مانچسٹر سے وسٹرشائر پہنچی. وسٹرشائر میں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام اسکواڈ کی کورونا ٹیسٹنگ کی جائے گی. اس دوران قومی اسکواڈ 14 روز تک قرنطینہ میں گزاریں گے، تاہم انہیں پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت ہوگی. قومی ٹیم 13 جولائی کو ڈربی شائر روانہ ہو جائے گی. بائیں ہاتھ کے اسپنر ظفر گوہر انگلینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے. NSS پری میچ تیاریوں کے لیے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. پاکستان کو اگست ستمبر میں میزبان انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلنی ہے. دورہ انگلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم خالی اسٹیڈیمز میں میچز کھیلے گی. کرکٹرز اور ٹیم آفیشلز نے تماشائیوں کے بغیر کھیلے جانے والے میچز کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغامات میں احساسات کا اظہار کیا ہے. آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. فینس جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کرکٹ میں، اور اسپیشلی گراؤنڈ میں نہیں ہوں گے. ان سے بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں بھی، اور جذبے سے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پرفارمنسز سے، اپنی کمپیٹیٹو کرکٹ سے آپ لوگوں کو گریٹ کرکٹ مومنٹس دیں. فینس کافی سپورٹ کرتے ہیں، کافی چیئر اپ کرتے ہیں، تو اس بار ہم وہ چیز کافی مس کریں گے. انگلینڈ میں ہمیشہ سے کراؤڈ نے پاکستان ٹیم کو بہت سپورٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس بار جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوگا. اس طرح آپ لوگوں نے پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے، مجھے سپورٹ کیا ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ابھی بھی سپورٹ کریں. پہلے میں سب کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جی دوبارہ سے کرکٹ کا کم بیک ہو رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو اچھی پرفارمنس سے اور خوش کریں. میری فینس کے لیے، فالوورز کے لیے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے یہ سجیشن ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور جہاں جہاں موقع ملے ہمیں فالو کریں. آئی ہوپ کہ ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں گے. اسپورٹ ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ شفیق اور ناظرین. کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمین نرانا اور علی جنت کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. قومی قیادت سے بڑھ کر کورونا آپ کے گھر خود نہیں آئے گا اگر آپ ضلع میں باہر نہیں جاتے. بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں. بامر مجبوری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. میں آئیں گے ایک دن ستم شاہ کو تجھ کو چڑا
वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर संवाद करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। मैं तो औखी सौखी होके कर दूंगी पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तस्वीर तुम्हारे नेड़े से नहीं दूंगी। बड़ी आपा जी सलाम। क्या आप बक रहे हो? मूंछों वाली आपा। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी कचूर, घास वाले मैदान। अब ये आपकी सारी बात चीजें नकली है, बाल भी नकली, ये भी नकली, दांत भी नकली, जज्बात नकली, आंसू नकली, हर चीज नकली। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये एक ख्वाब है इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल है और हंसमुख है, यारों के सुख इनके सुख है, यारों के दुख इनके दुख है। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बिरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख अलाव। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे, बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल। दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें, दिखलाती है टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे कप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है, इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है।
खेत तो हर दहकान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत